Good morning, students. So in this next lecture, we will discuss a very important model, Bohr's model of atom. The main postulates of Bohr model of atom are: number one, Bohr model of atom basically is based on the particle nature of light, like Planck's quantum theory. Okay. So atoms consist of two parts according to Bohr. One is a nucleus, second is an extranuclear. Nuclear part has a nucleus present at the center of atom, in which protons and neutrons are there. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit or a shell. In a circular orbit or a shell. Okay, like this. This is a nucleus. These are the 1, 2, 3. These are the circular fixed path around the nucleus where the electrons revolve. And these circular paths are called orbits, or these are also called stationary orbits, and these are also called shell. These are also called shell. Stationary orbit does not mean that electron is stationary there. Electron is fixed at one point. No, electron is moving in these orbits, but the energy of that orbit is fixed. Stationary means orbit having fixed energy. Number two is there are infinite number of circular paths or orbit around the nucleus. Nucleus के around बहुत सारे infinite number of ऐसे circular paths हैं. जैसे ये diagram show कर रही है. There are infinite number of circular paths around the nucleus. But electron, third point है, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं करता. So third point is out of these infinite number of circular orbits, electron revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So angular momentum, that is MVR, that is the integral multiple of h by 2 pi, where n is whole number, that is an integer 1, 2, 3, 4, so on. So n cannot be a fraction number. तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऑर्बिट में, जैसे ये है हमारी के शेल, दिस इज सॉरी फर्स्ट इज योर के एल एम शेल एन शेल. So now this k is equal to n1, l is equal to n2, m is equal to n3, n is equal to n4. So these 1, 2, 3, 4, these are the orbits. N1 means first orbit, N2 means second orbit. Okay. And what will be the angular momentum? Angular momentum of electron will be always integral multiple of h by 2 pi. Means या तो angular momentum होगी if n is 1, h by 2 pi. If n is 2, h by pi. If n is 3, 1.5 h by pi. If n is 4, 2h by pi, like this. जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इनमें से कोई है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. जिसमें नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा. ओके. तो देयर आर लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम जो है वो m का
h/2 का होल मल्टीपल है। क्लियर? जैसे h/2 और h/π इसके बीच में वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब जैसे ये वाला है k, इसके बीच में भी कुछ ऑर्बिट्स हैं, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहां पे करता है? जिसकी एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल है। जिस भी ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम इनमें से कोई है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसमें ऑर्बिट्स तो बहुत ज्यादा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम की हर एक लेवल पे एक फिक्स वैल्यू, बढ़ेगी तो उतनी बढ़ेगी, है ना। जैसे क्वांटाइजेशन मीन जैसे मान लो ये मेरे पास एक ये स्टेयर्स हैं, तो आप जब स्टेयर ऊपर चढ़ोगे या नीचे आओगे तो आपके पैर कहाँ कहाँ पड़ेंगे? ये जो है दिस इज 1, दूसरा पैर यहाँ, तीसरा, चौथा। इनके बीच में 2 और 1 के बीच में आप अपना पैर नहीं रख सकते। ऐसे ही K और L के बीच में जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वांटाइज्ड का ये मतलब होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर जाए, आप कहीं भी पैर रख रहे हैं, जैसे मान लो स्टेयर्स की बजाय ऐसे है, स्लोप है, तो आप इस पे चढ़ रहे हो तो कहीं पे भी पैर रख सकते हो। ये क्वांटाइज्ड नहीं होगा, इसमें सभी वैल्यू है, दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। ओके, अब इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में जो ने सिंबल यूज किए वो देख लें। इसमें m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r जो है वो आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। m की वैल्यू 1 2 3 4, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज कांस्टेंट 22/7 होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड it increases as the distance of electron increases from the nucleus। जैसे मान लो EK, एनर्जी ऑफ K शेल, यहाँ पे आ गया हमारा K शेल, यहाँ पे आ गया हमारा L, जिसको हमने N1 N2 दिया है ना, M देन इज N, और बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी लेते हैं? 0। At infinity, because this is isolated electron, its energy is taken as 0। तो जैसे जैसे हम ऐसे के बाहर जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। K में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, L में है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, ऐसे एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ना ही तो वो एनर्जी लूज करेगा, ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। एज अनलेस until electron revolve in any of stationary orbit, it will neither lose energy nor gain energy। ना तो ये एनर्जी लूज करेगा ना ये एनर्जी गेन करेगा। ओके, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट
is known as ground state, that is n equal to 1 K shell. ओके, उसके बाद एक टर्म होती है यहाँ एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट क्या है? एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट. जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स अदर देन ग्राउंड स्टेट, जैसे N2 को बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. N3 इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ओके, अगर मान लो आ जाता है N8, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट. तो ये न्यूमेरिकल में आपसे ये टर्म्स आएगी. उसमें अगर दिया हुआ है आपको कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपने एन की वैल्यू कितनी लेनी है? 2. अगर दिया हुआ है सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, आप एन की वैल्यू कितनी लोगे? 7. नेक्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व और लूज एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. तो ऑब्जर्व करेगा when it moves from lower energy to higher energy, and lose करेगा when it jumps from the higher energy to lower energy. Clear? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये दो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं. दिस इज योर N1, दिस इज योर N2. हियर इज एनर्जी E1, हियर इज एनर्जी E2. तो सपोज इलेक्ट्रॉन जंप टू लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. यहाँ पे E1 की वैल्यू जो है वो E2 से कम है, तो इट ऑब्जर्व एनर्जी. तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा. कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा? डेल्टा E, E2 माइनस E1, दोनों का डिफरेंस. ऐसे ही अगर मान लो दिस इज N1, दिस इज N2, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो ये क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा. कितनी लूज करेगा? वो भी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, E2 माइनस E1. अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी ना ही तो मिट करेगा ना एनर्जी गेन करेगा. लेकिन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, इट मे एमिट और इट मे लूज एनर्जी और इट में ऑब्जर्व एनर्जी. अब अगर इलेक्ट्रॉन E1 पे है, उसने E2 पे जाना है, तो जब तक उसको सफिशिएंट डेल्टा E एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा, फर्स्ट में ही बैठा रहेगा. ऐसा नहीं है कि उसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया. बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल. या तो इलेक्ट्रॉन E1 पे होगा या इलेक्ट्रॉन E2 पे होगा. जब तक उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अंटिल फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. that is attraction between the nucleus and the electron, that should be equal to the force acting away from the nucleus, that is your centrifugal force. Because when the electron revolve in a circular orbit, जो outward force लगेगी that is a centrifugal force, जो inward को force लग रही है that is electrostatic attraction. तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये हमारा है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा Q1, ZE लिखेंगे. Z क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जो बोर मॉडल है दैट इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर हाइड्रोजन दिया है तो Z1 है. अगर हम मान लो हीलियम दे दिया तो इसका मतलब उसमें तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 होंगे तो फिर यहाँ पे 2E आ जाएगा. E इज अ चार्ज. इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा तो उसके लिए सिर्फ क्या लेना है? E.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होती है के Q1 बाय Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट रहेगा यहाँ, Q1 Q2 दोनों चार्ज हो गए, Q1 न्यूक्लियस पे, Q2 इलेक्ट्रॉन पे, और R जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, नीचे R का स्क्वायर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय R। तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों जब इक्वल होंगी तब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ओके, तो इस रिलेशन को हम आगे जैसे ये बन जाएगा हमारा mv स्क्वायर बाय R, इसको हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू है ZE, Q2 की वैल्यू है E, तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। क्लियर? तो ये रिलेशन हम आगे यूज करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो बोर मॉडल है BM दैट इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन कौन आता है भाई? हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा, अगर हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Li2+ आएगा, इसमें भी फिर एक इलेक्ट्रॉन है, Be3+ आ जाएगा, बोरॉन 4+ आ जाएगा। अब इनके लिए Z की वैल्यू अलग अलग होगी। ये जो Z है, ये Z इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बैठा है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट की इक्वेशन जो है हम ड्राइव करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर मॉडल, इसमें क्या करेंगे? देयर आर टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज mvr nh by 2 pi, ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन थी हमारे पास। सेकेंड जो अभी की थी दैट योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों से हम ड्राइव करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हम लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेलोसिटी बिकम इक्वल टू nh by 2 pi mr। चलो ऐसे लिख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। सेकेंड वाली इक्वेशन में v को पुट कर देंगे m by r। v की वैल्यू nh by 2 pi 1 by mr का स्क्वायर इक्वल टू k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसकी वैल्यू आगे ले जाएंगे इसको यहाँ, ये बन जाएगा हमारा mr स्क्वायर कर देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर 1 by m स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? काट दो जो इसमें से, जैसे ये क्या यहां से कट जाएगी, ये R ये R से कट गया। ओके, अब R एक बचा, उस R को, ये R बचा, इस R को लिख लेंगे R इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा भैया? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 pi स्क्वायर m 4 pi स्क्वायर m k ZE स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं Rn, दैट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने ड्राइव कर लिया R के लिए, n को और z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है।
n कांस्टेंट नहीं है, z कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट है. सो by putting values of all constants, we get Rn equal to 0.529 n square upon z, और यूनिट इसकी आ जाएगी एंगस्ट्रॉम. ये फार्मूला आपको याद रखना है डायरेक्टली. दिस इज योर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसमें n जो ऑर्बिट होगा, z जो है वो आपका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है. इसके बेस पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. देखिए प्रॉब्लम में क्या कह रहा है. P1 कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम आते ही Z कितना हो गया 1. फर्स्ट के लिए R1 0.529 into 1 square by 1, तो ये आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम. 2 के लिए 0.529 n की 2 हो गया, Z तो 1 ही है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.116. R3 निकालना है तो 0.529 into 3 का स्क्वायर बाय 1. 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.761. तो ऐसे हम इसकी प्रॉब्लम जो है रेडियस से रिलेटेड हम करेंगे. तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा क्या है, दिस वन यू हैव टू मेमोराइज डायरेक्टली. So second is calculation of velocity of electron in an orbit. तो वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो ये था हमारा Rn, लास्ट में जो ड्राइव किया था. अब दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन mvr nh/2 पाई. v को मैंने vn लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. Rn, यहां से Rn की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो mvn. तो यहाँ पे हम Rn की वैल्यू ले आएंगे. वैल्यू क्या है हमारी, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर इक्वल टू nh/2 पाई. यहां से जो कटता है उसको काट दो. जैसे ये m है तो m से कट गया. ओके. nh से कट गया. 2 पाई 2 से 4 और 1 पाई से 1 पाई कट गया. तो आपके पास Vn क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई kZe स्क्वायर बाय nh. तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया. इसमें भी n और z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है. जब आप कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो आपका Vn जो है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.18 10⁸. ऊपर क्या है z, नीचे n, तो z बाई n. z इज अगेन एटॉमिक नंबर, तो यूनिट इसके आ जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो जैसे रेडियस का फार्मूला था ऐसे ही आपका वेलोसिटी का ये फार्मूला सेकेंड आ जाता है. इसके बेस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम मैं बाद में भी करवाऊंगा कुछ. तो प्रॉब्लम 2 क्या है, जैसे मान लो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन. ओके. तो V3 हो गया. वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट क्या फॉर्मूला था, 2.18 10⁸. ऊपर था n, नीचे था z. n आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो n3. लिथियम का एटॉमिक नंबर
3 तो Z भी 3/3 कट गया, तो यही आपका आंसर आ गया 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एक और कर लेते हैं। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन of Be3 positive ion in fifth excited state. तो सीधी सी बात है, Z कितना हो जाएगा इसके लिए 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब N कितना हो गया 6, बस वेलोसिटी लिख लो आप 6 में 2.18 10⁸, N की वैल्यू 6 और Z की वैल्यू 4। सॉल्व करोगे तो 1.44 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो ऐसी वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स हैं। So this is calculation of energy of electron in Bohr orbit. So electron in an Bohr orbit that possesses two type of energy, kinetic energy as well as potential energy. So total energy that will be equal to sum of kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? Number one, that is due to motion of electron and it is expressed as half mv square. And from the previous relation we can derive it is half Ze square by r. So this is the kinetic energy of electron, half Ze square by r. K यहाँ पे हमने 1 ले लिया, that is constant. Potential energy that is equal to minus Ze square by r. Why there is a minus sign? Potential energy किसकी वजह से है? That is due to the charge system. And negative sign indicate that there is a force of attraction between the nucleus and electron. So this is minus Ze square by r is a potential energy. What is total energy? Sum of these two. So kinetic energy plus potential energy, we put the value here, we get total energy as minus half Ze square by r. Ratio. First ratio is between kinetic energy and total energy. Kinetic energy की value ये है half Ze square by r. Sorry, r is here. And total energy की value ये है minus half Ze square by r. तो ये कितना आ गया हमारा -1। दूसरी रेशो ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्स अबाउट एंड टोटल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये है हमारी माइनस Ze square by r, टोटल एनर्जी की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा आपका 2। सो दिस इज द ओवरऑल रिलेशन बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, kinetic energy, potential energy and total energy. The ratio is in 1, -2 and -1. Means the ratio between kinetic energy and total energy is -1. Kinetic potential energy and total energy is, when you use this ratio you will get 2. Okay. So En is the energy of electron in nth orbit. So what is En? It is equal to minus half Ze square Rn. ये क्या था हमारा? That is the total energy. Now Rn की वैल्यू हमने पहले कर ली थी. Just put the value of Rn in this reaction, in this equation you will get En. इसमें भी आप देखो और Z और N को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है. Z और N को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है. जब हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो अब E की वैल्यू, En की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.6 Z स्क्वायर ऊपर N स्क्वायर नीचे, ये आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कैसे चेंज करना है, किलो जॉउल में कैसे चेंज करना है वो आपको पता है। वैसे किलो जॉउल वाली वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, किलो जॉउल वाली मोल, तो इसको 96 से मल्टीप्लाई किया है। These two formula they are very important. Most of the problem of atomic structure you will get based upon these two formulas. Okay. अब कुछ इसमें एनर्जी का फार्मूला भी हमने कर लिया, वेलोसिटी का फार्मूला भी कर लिया और रेडियस का फार्मूला भी कर लिया। तो ये तीनों जो है आपको याद रखनी होंगी। हम इसकी प्रॉब्लम कर लेते हैं।
calculate energy of first, second, third and fourth Bohr orbit. Fourth Bohr orbit of हाइड्रोजन एटम। तो सीधा सीधा हाइड्रोजन के लिए आपका हो गया E1 एनर्जी ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी आ गई। ऊपर Z था, नीचे N था। ओके, E2 निकालना है तो -13.6, Z तो 1 ही है, लेकिन अब N कितना हो गया 2, तो 2 रेज़ पावर 2 4 हो गया। तो आप -13.6 को 4 से डिवाइड करोगे, -3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी -3.4 आ जाएगा सेकेंड की तरफ। ये 3 करोगे -13.6 बाय 9 कर दो, तो ये आ जाएगा -1.5। E4 निकालना है तो -13.6 बाय 16 कर दो, ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अच्छा है कि आप ये चारों वैल्यूज को याद रखें कि बार बार यूज होगी। प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दीज फार्मूलाज। तो अब तक हमने क्या क्या ड्राइव कर लिया। व्हाट इज Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। इसमें n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है और z जो है वो एटॉमिक नंबर। दूसरा हमने फार्मूला ड्राइव किया था वेलोसिटी का, Vn 2.18 n/8 z/n। और तीसरा हमने फार्मूला यूज ड्राइव किया था एनर्जी का, 1, 2 and 3, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन। तो पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ B3 पॉजिटिव आयन। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू n की वैल्यू उसने बता दिया, थर्ड बोर ऑर्बिट, इसका मतलब n 3 हो गया, n का स्क्वायर, नीचे z उसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है 4। तो ये आपके पास क्या बन रहा है 0.5299/4। इसको यहां छोड़ दो। आगे हम करेंगे रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन 0.529। कौन सा ऑर्बिट है इसका, फिफ्थ, तो 5 का स्क्वायर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो ये हो जाएगा 25/3, 0.529 इंटू 25/3। अब निकाल दो रेशो। रेडियस ऑफ Be3 पॉजिटिव ऊपर, रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव नीचे। 0.529 इंटू 9/4 डिवाइड 0.529 इंटू 25/3। ये कट गया, 9/4 इंटू 3/25 आ जाएगा, 9/4 इंटू 3/25। तो ये हो गया हमारा 27/100 मीन्स 0.27 आपका क्या आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस diameter and area of fourth Bohr orbit of B3 पॉजिटिव आयन। रेडियस का फॉर्मूला सामने है, तो यहां से हम पहले इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ Be3 पॉजिटिव आयन 0.529
फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 4, z की वैल्यू भी 4, 4 स्क्वायर बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। दिस इज रेडियस। डायमीटर कैसे निकालेंगे? दैट इज 2r, 2 मल्टीप्लाई 2.116, 4.22232 4.32 आपका आ जाएगा डायमीटर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है और एरिया जो है वो आप निकाल लोगे। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r की वैल्यू पुट कर देना बस, और एरिया जो है वो पाई r स्क्वायर करके इसकी वैल्यू दोनों की आप निकाल लोगे। Next problem, calculate ratio of velocities of electron of fifth Bohr orbit of Be3 positive ion to third Bohr orbit of He positive ion. So this is the formula for velocity. You can apply this formula directly. First Z and N. So there is a fifth, N is 5 of Be3. तो Z इसका हो जाएगा 4 एटॉमिक नंबर। सॉरी Z बाय N लिखना है, Z ऊपर N नीचे। ओके, देन हीलियम पॉजिटिव का भी 2.18, 10⁸, हीलियम का Z2 और N थर्ड ऑर्बिट 3 नीचे। तो बस इसमें रेशो ले लो, वेलोसिटी ऑफ Be3 पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ He पॉजिटिव, तो ये कट जाएंगे दोनों, तो 4/5 इंटू 3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 6/5। तो एक फार्मूला डायरेक्ट रेशियो का क्या होगा, अगर हम वेलोसिटी ले लें Zn1, वेलोसिटी ले लें Zn2, that will be equal to Z1 by Z2 into N2 by N1. This is the general formula to calculate the ratio of velocities to different nuclei. Next problem is, if energy of fourth Bohr orbit of helium, fourth Bohr orbit of lithium ion is X, the given is X. Then calculate the energy of sixth excited state. Sixth excited state का मतलब N7 of helium ion in term of X. तो E4 किसके इक्वल आ गया, ये हमारा एनर्जी का फार्मूला है, -13.6 Z किसके लिए, लिथियम के लिए 3, N उसका जो फोर्थ ऑर्बिट है, ऐसे ही लिथियम के लिए, तो इसको X ले लिया, X/E7, रेशियो निकाल के क्या आ गया हमारा 441.64, तो E7 किसके इक्वल आ जाता है 64x/441. So this is the energy of sixth excited state of helium in term of X. The next problem is, calculate energy required to promote electron of Li2 positive ion from ground state to third excited state. This is, say, the ground state, and 1, 2, 3, 4. This is your third excited state. We have to take the electron from this to this and calculate the energy required. जो एनर्जी चाहिए उसे हमें निकालना है। लिथियम है तो Z की वैल्यू 3 रहेगी, N1 1 और N2 जो है वो 4 आएगा। ठीक है, तो डेल्टा E कैसे निकालेंगे, जितना एनर्जी गैप है 13.6 इंटू, इसका फार्मूला हम बना देते हैं ये Z स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। आगे रेड डैश फार्मूला आएगा वो भी ऐसा ही है,
ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना कि एनर्जी 1 पे कितनी है, एनर्जी 4 पे कितनी है, दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो दोनों को डिफरेंस करोगे तो जैसे मान लो ये E1 ये E4, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या होगा, E4 माइनस E1। तो उसके लिए ये फार्मूला, इसमें बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है, 36(9) हो जाएगा 1/1² माइनस 1/4²। क्लियर। तो ये बन जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा जी आपका 1/1 माइनस 1/16। तो ये 15/16 हो गया। ओके, 13.6 इंटू 9 इंटू 15/16। तो ये 13.6 को 16 से माइनस करेंगे 0.85 आ जाता है। फोर्थ एनर्जी लेवल में एनर्जी जो हमने निकाली थी, 0.85 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 114.75 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी एनर्जी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है तो।